Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing our Bhishma Stuti and we completed verse number 37. So we will be starting with verse number 38. So it's 9th chapter, 1st canto, 9th chapter, verse number 38. So just before we go ahead, fast recap, we had Bhishma Pitama recollecting how Krishna became angry. कैसे भगवान गुस्से हो क्योंकि उनको बाण लगे थे और अर्जुन को सहने जा रहा था, युद्ध लड़ नहीं पा रहा था भीष्म पिता के मां के साथ। तो उन्होंने क्या किया, खुद रथ से उतरे और चक्र को लेके, रथ का चक्र, यहाँ पे भी two ways of interpretation. Some say there was a ratha lying in the battlefield. Some say no, Krishna removed the ratha from the ratha से चक्र निकाला, उनके रथ से चक्र निकाले और भागे। मतलब इतना मतलब वेपन यूज करना ही था, उन्होंने सोच लिया था। तो that's also another interpretation given by the acharyas. So he went charging and that while charging उनका उत्तरीय जो था वो नीचे गिर गया and Arjuna was holding his feet and Arjuna, Bhishma Pitama says that's a very beautiful sight which I could see. And the same sequence is continued in the next verse, in this verse also. Sita Vishik Hato Vishirna Dramshah Chitra Paripluto Atitayino me Prashavam Abhisasara Mada Vadartham Svabhavatu me Bhagavan Gatir Mukunda. He says, may he, Lord Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, he charged me as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was shattered and his body was smeared with blood due to the wounds. So he is continuing the earlier verse only, in which he is saying is, may that be in my mind. So what is the difference between Kunti Stuti and Bhishma Stuti? काफी दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ पे जो कुंती स्तुति भी अटेंड किए, भीष्म स्तुति भी अटेंड कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। Kunti was praising without taking calling him the Lord because she had to maintain the dignity that she is the Bua. Here Bhishma Pitama is openly calling him the Lord. Okay, she also calls him, no? But ठीक है, right. because that's okay, that was a प्रोटोकॉल और राधा नो, कुछ भी वो बुआ थी, बड़ी थी उम्र में, तो इसके लिए नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे. Then she calls to the feet, because as बुआ she can't start directly with the feet, so that's why she starts with the navel. नमो पंकज नाभाय, नाभि से जो पंकज निकल रहा है उसको प्रेस करती, फिर मालाय, नमो पंकज नेत्राय, फिर नमस्ते पंकजांग्रे. आंग्रे मीन्स फीट. Yes, very good, ठीक है. Something more. इनका भीष्म पितामह बीइंग अ वॉरियर, तो वो युद्ध भूमि का ही लॉर्ड को याद कर रहे हैं वैसे, एंड वहां पर कुंती महारानी उनको भगवान को बाल रूप में तो नहीं, लेकिन एक ऐश्वर्य भाव में उनको उनका वर्णन और वैसा उनका गुड, वेरी नाइस. वात्सल्य, इधर वात्सल्य भाव ज्यादा है कुंती महारानी का और इधर एक वॉरियर है की वजह से, योद्धा की जैसे. She has praised Krishna as a savior. You're close. No, you're close. I want a philosophical analysis. At the end of life, Bhishma Pitama wants to have Krishna's darshan and then only wants to leave his. ठीक है. See, you all are forgetting, missing out a very important difference. Here, Bhishma Pitama, from the very first word he starts, iti matir उपकल्पित वितृष्णा. इति मतिर, मेरे मन में, my mind, I want to remember Krishna. So here he is surrendering the mind, and there what she is saying? Give me Dukhaton idol. So what is she saying? I want to have you always. See, there is a difference. यहाँ पे भगवान को हमेशा साथ रख पाने का या साथ रहने का या उनके साथ होने का फायदा बता रही है कि भाई आप थे इसके लिए परीक्षित बच गया, आप थे इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के तकलीफों से हम बचे, जैसा
what is it, the poison of Bhima and Lakshagra and even Draupadi ka Dvit Krida, Vasran and all that, सब में आपने मुझे बचाया. So she is trying to praise the Lord that by His presence only her very survival is possible. But यहाँ पे भीष्म पितामह स्टार्टिंग में बोल दिए, क्या बोले? अहो न्याय मोह कष्टम ये जुनान धर्म नंदना. भाई तूने जो अन्याय जो कष्ट तूने सहा है, ये दिस इज व्हाट शी सेड इन द एंटायर स्तुति कि भाई मैं दुख में, हम लोग दुख में थे बट फिर भी नो प्रॉब्लम. देन शी सेज अ वेरी गोल्डन वर्ड्स, क्या है वो? हाँ, दुख में साथ में. और जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भेद मान मदपुमान नहीं हत्या अभिदा तुम वे त्वम अकिंचन गोचर. शी सेज तुम जिसके पास जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, श्री मतलब पैसा, जन्म मतलब अच्छा खानदान में पैदा होना, ऐश्वर्य जिसके पास खूब सारा ऐश्वर्य, श्रुति श्रुति मतलब बहुत सारा ज्ञान, श्री जिसके पास लक्ष्मी है. ये चार लोग. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐश्वर्य एंड श्रुति श्री? वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड नो. हम लोग आजकल सब पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, बट दे डोंट नो द डिफरेंस. श्री इज मोमेंटरी. नो फेमस क्यों ताले में डाल के रख सकते हैं ना लोग. अभी ऐश्वर्य इज फॉर इटर्निटी. ऐश्वर्य इज फेमस. See, it is not necessary that a moneyed man has to be cultured. There is no necessity for a moneyed man to be cultured. पैसे कितने लोगों के पास? बहुत सारे हैं. But the way they live, the way they behave, the way they talk, it's so. I'm not trying to make a very discriminating statement that a moneyed person should be posh or polished. I'm not saying that. But he is always aware that I have earned the money. Whereas जो ऐश्वर्य में रहता है वो जानता है okay he has inherited it or he has got it or he is really living it with culture and understanding. ये अंतर होता है. That's why there are some people who are rich and some people who are suddenly rich. और मालूम पड़ता है ये आदमी के पास सडन पैसा आ गया, इसके लिए समझ में नहीं आता. दिन में भी रात में भी गॉगल्स पहन के घूमेगा, समझ जाने का हाँ ये सडनली रिच हो गया. Really, you can see that those type of funny behavior. They flaunt things just because they want to show that they have got the money. Whereas some who are really good quality, they don't show. They quietly put their head down and they move away. So that's why Kunti Maharani was mainly saying, Lord, everything was possible because of your presence. But यहाँ पे, as you rightly said to a great extent, since Bhishma Pitama is lying on the bed of arrows and he is about to die, he said, no, at this time I want to remember only you. मुझे सिर्फ आपको याद रखना है. तो इसका मतलब सेम भगवत गीता वही श्लोक आया ना क्या? कौन सा श्लोक है? हाँ तो कौन सा श्लोक है? कुछ तो श्लोक सीखो. इतना जूने पुराने हो गए सब लोग, कुछ याद नहीं है. अंतकाले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम न प्रायति समद्भावम यातनात् संशयः. इतना बार मैं बोल चुका, सुन के तो बाहर हो जाना चाहिए था. Then he says, yam yam vapi smaranam bhavam trajadant kalevaram tam tam eviti kauntiya sada tad bhav bhavita. Now clearly says, and this is the actual practical application. That's why I always say Bhagavad Gita is law book and Bhagavatam is law journal. भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको क्या करना चाहिए, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, हमको भगवान को याद रखना है. एंड इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं, यहाँ बैठ के नहीं बोल अरे वो तिजोरी में वो सोना का सेट रखा था वो क्या हो गया, वो जमीन का क्या हो गया, अरे वो पेपर्स लेके आया मेरे को साइन करना है. ही इज नॉट इन दैट मूड. इन द मूड इज सेइंग आई वांट टू रिमेंबर. तो ये हमको भी सीखना है. At the time of death also we should not be attached to our worldly things. भौतिक चीजों के साथ हमको हमारा कनेक्शन नहीं रखना है. इन भौतिक चीजों के साथ आप कितना भी कनेक्शन करो एक ना एक दिन आपका छूटने वाला ही है फॉर श्योर. नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा. बेहतर है पहले छोड़.
At least prepare yourself mentally that this is not mine forever. This is, I am right now possessing it. I am not having it. Possessing and having are two different things. आप मेरे पास है, जैसा आप गाड़ी में जाते हो, टैक्सी में जा रहे हो, आप उतरते हो सीट भी लेके जाते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो सीट लेके निकलते हो, प्लेन में उतरते हो तो चेयर लेके निकलते हो, बकेट सीट लेके निकलते हो. यू कांट. सो यू नो वेरी वेल दिस इज नॉट माइन. आई एम ओनली ट्रैवलिंग. वंस आई गेट डाउन it will go its own way, I will go my own way. Same way the entire possessions in this world, इस धरती में जो भी आपके पास है और जो लोग आपके पास है, माँ बाप भाई बहन पत्नी पति बच्चा काका मामा चाचा whatever you have, ये सब भी बस इस शरीर के साथ. The minute आपका इस शरीर से संबंध खत्म, यही लोग जल्दी जल्दी लेके जाओ, बॉडी को लेके जाओ, जला के आओ. ये भागेंगे आपको जलाने के लिए, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी उसी मोमेंट से इनवैलिड हो जाता है. तो व्हाट इज दैट? आधार कार्ड गया तो आज का आपका गया, पैन कार्ड गया तो योर एग्जिस्टेंस, योर मनी, यू कांट क्लेम योर मनी विदाउट पैन कार्ड. देन व्हाट यू विल डू? कैन यू क्लेम, यू एज अ सोल कैन यू क्लेम हे माय मनी? यू कांट क्लेम, क्योंकि आपको फोटो नहीं देते ना उसमें. सोल का फोटो नहीं आता ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर Kunti Ramarani says is with respect to his presence, but here how one has to leave the body. So Bhagavatam teaches us the art of leaving. कैसा छोड़ के जाना, कैसे छोड़ना है, how to detach. Shukdev Goswami, what was the need for Shukdev Goswami to come to give Parishad knowledge? इतने सारे ऋषि थे, कितने बैठे थे, व्यास देव से लेके नारद मुनि से लेके सब लोग बैठे थे, बट सुखदेव गोस्वामी को आने की जरूरत क्या पड़ा? What was the need for Shukdev Goswami to come and speak to Parishad Maharaj? क्यों? ब्राह्मण का श्राप था, ब्राह्मण ही उस श्राप का निवारण भी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता. और ब्राह्मण इतना उच्च कोटि का होना चाहिए, श्राप को भी निकल सके, और उन्होंने निकल लिया उस श्राप को भी. परीक्षित मरा ना, बचा तो नहीं, बट जो मृत्यु का डर था वो हटा. That is what is actual understanding of Bhagavad. So again here Bhishmapita is again telling the same thing. May he, Lord Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation to my ultimate destination, मुझे मुक्ति दे सके. तो भगवान मुक्ति दे सकते हैं, ये बात जानने वाला व्यक्ति ही इंटेलिजेंट है. देवी देवता का पूजा करने वाले, भागने वाले, आई एम नॉट सेइंग दे आर फूल्स, बट दे आर डेफिनेटली नॉट स्मार्ट. व्हाई? फल जरूर मिलेगा. देवी देवता कुछ, दे आर नॉट स्मॉल एंटिटीज, दे आर ग्रेट पर्सनालिटीज. भले वो भगवान नहीं है, देवी देवता छोटे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मगर उनसे जो फल मिलता है, अंतमंत तो फलम तेषम तद भवेत् अल्पमेधसाम. भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो देवी देवताओं से जो फल मिलता है अंतमंत तो फलम तेषम. जो आपने देवी से मांगा, देवी देवी पूजा कर रहा हूँ, आपका माता का चौकी रखा हूँ, ये रखा हूँ, वो रखा हूँ, मुझे जल्दी से गाड़ी दे दे. चलो गाड़ी दे दी, आपकी अंतिम यात्रा भी उस गाड़ी में नहीं होने वाली है ना. योर लास्ट, इवन योर लास्ट मिनट्स यू कैन नॉट, योर बॉडी इज नॉट केप्ट इन द कार. तो अंतमंत फलम तेसम, ये फल जो है वो अंतमंत है, इट विल टाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. अगर नहीं गए तो एट द टाइम ऑफ डेथ डेफिनेटली those fruits will be separated from you. तत् भवेत् अल्पमेधसाम. ये अल्प बुद्धि वाले, छोटे बुद्धि वाले, they are not very smart. उनको बुद्धू नहीं कहा गया, but अल्पमेध, छोटे बुद्धि वाले, less intelligent. So here personality of Godhead is awarding salvation to my ultimate destination. On the battlefield he charged at me as if in anger because of the wounds dealt by me. मेरे वजह से उनको घाव लगे, उनकी वजह से घाव लग सकते हैं. कोई भगवान का बाल बांका कर सकता है. Then what do you understand? Lord is playing with the devotee. Yes, he is reciprocating. Even the pleasure that He is giving pleasure and he is taking pleasure. You know, Krishna, when he was a small child, आजकल तो नहीं है मॉडर्न जमाने में, पहले जमाने में हुआ करता था.
घर के दरवाजे पे एक पाटिया लगा चाहिए ताकि बच्चा बाहर न जाए। वेरी टिपिकल। एंड आई कुड सी इन मेनी हाउसेस बच्चा ऐसा गेट के बाहर खड़ा है, कैदी की तरह देख रहा है। We all are grown up like that. And that was an era. अब वो नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा. But the gate. So Narad Muni was seeing this. Krishna was trying to cross the sea. Every time यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लेती है और जाती है, तो एक दिन कृष्ण यशोदा मैया ने तो पैर पार मतलब वो साइड लगा के पार कर लिया एंड कृष्ण को बोला चल आजा, तो कृष्ण भी चढ़ गया, एक टांग उसका ऊपर, एक टांग इधर जो था वो भी गया, पर गया एंड अब मैया मुझे बचा ले, मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, मेरा सिर फूट जाएगा, बचा ले मुझे। नारद मुनि सेज जिन्होंने 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, वो घर का दहलीज नहीं नाप पा रहा है। सी द डिफरेंस, जो ब्रह्मांड नाप सका वो घर का दहलीज पार नहीं कर पा रहा है। दिस इज व्हाट इज लव। दिस इज व्हाट कृष्ण शोज दैट ही इज हेल्पलेस। देखो कृष्ण जा रहे हैं, सो सुबह जाते हैं ना, तो यशोदा मैया मेक श्योर दैट जितने भी गहने पहना है ना, कृष्ण इज केयरलेस, कुछ ना कुछ गहना छोड़ देगा या वहां उसके दोस्त लोग उसको निकाल के उसको ऊपर पेंटिंग करना चालू करेंगे, तो ही इज लाइक वेरी अपसेट, शी इज वेरी अपसेट यशोदा मैया। सो यशोदा मैया कॉल्स कृष्ण, देख मैं स्टॉक टेकिंग लेंगी, शाम को तू आएगा ना, आई टेक स्टॉक टेकिंग। तो आया, अभी आएगा ना 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग तो आया घर पे, आया, चलो मुकुट है, हाँ मुकुट है, गले में चेन है, हाँ है, बाजूबंद है, हाँ बाजूबंद है, अंगूठी है, यू नो ऑल। देखा तेरा कमर पट्टा दे, काली कमरिया किधर है? व्हाट इज दैट काली कमली? काली कमरी बोलते हैं ना, सुना है ना सब लोगों। व्हाट इज दैट काली कमरी है? कमर में बांधते हैं कृष्ण, दैट्स व्हाई पीतांबरी के ऊपर कृष्ण कमर पे वो काली कमरी बांध, मिसिंग, स्टॉक टेकिंग में नहीं है। कहाँ गया? बोला कहाँ गया? बोला क्या मालूम। तो हाँ मुझे याद आया, ओ मैं यमुना किनारे में हाथ मुंह पैर धोने गया था, तब यमुना में बह गया, पानी ज्यादा हो गया, बह गया। यशोदा ऐसा देखी उसे, ठीक से बोल, झूठ मत बोल। हाँ मुझे याद आया, मैं एक जगह पे मैं ऐसे उतार के रखा था आराम करने के लिए, इतने में अपनी गैया आई, खा गई। बोला वाह, गाय को और कुछ खाने को मिला नहीं, तेरी काली कमरी खाने को मिला। तो सब कहानी सब बहाना सुना, फिर कृष्ण को बोला एक काम कर, ये क्या है निकाल के दिखा, उसका ही काली तेरा है ना? हाँ कहाँ से आया? वो मधुमंगल लेके आके दिया मेरे को, बोला कृष्ण ने किधर तो गिरा दिया है, मेरे को लाके दिया। तो इतने में कृष्ण बोला हाँ तेरे को सच बताऊं, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ये गोपी लोग इतना परेशान करते हैं, एकदम रोते रोते आंखों में से पानी बह रहा है। हाँ मैं इतना ईमानदारी से गया और वहां पे जाके काम कर रहा था, गोपियों ने पकड़ के खींचा, मेरी कमरी को पकड़ के खींचा, बोला अब तुझे चाहिए तो तुझे नाचना पड़ेगा, नाचेगा तो ही मैं दूंगा तुझे। तो ऐसा करके मेरे को नचवा दिया उन्होंने, और मैंने नाचा, फिर मैंने दिया नहीं, उन्होंने मधुमंगल के हाथ में दिया। सब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, ओनली टू गिव प्लेजर टू ऑलवेज से दिस। इट्स अ वेरी नाइस फील, आई लाइक टू रिपीट इट। वंस यशोदा मैया वाज वर्किंग इन द मॉर्निंग हाउस, बाजू के पड़ोस की गोपी आई, बोले मुझे थोड़ा गोबर चाहिए, गोबर चाहिए, मेरे गोबर लेके जाना है। तो इतने में यशोदा बोले हाँ कमी नहीं है, लेके जा, 9 लाख गाय है, गोबर की कमी है, लेके जा। इतने में कृष्ण अंदर से सुन लिया, बाहर, माँ तू बेवकूफ है, तुझे हिसाब किताब करना नहीं आता, तुझे पता है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बोला किसमें क्या नुकसान? हाँ कोई कमी थोड़ी, अगला रोज सुबह डालती है भैया क्या नुकसान क्या है? नहीं तुझे मालूम नहीं है, टेक्निकल है बट ट्रू टेक्निकल
See, one thing good, great about God is, God whatever He speaks, He speaks perfectly correct. पहले चीज तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय में, राइट? तब लक्ष्मी जी बोली मुझे वास कहां मिलेगा? तो लक्ष्मी जी को बोला गया आप गोबर में रहो। इसके लिए आप देखो हर घर में, गांव में, अगर यहाँ पे तो होता नहीं है, त्योहारों के दिन में कभी होता है, बट गांव में सब गोबर से लीपते हैं। क्यों लीपते हैं? ताकि लक्ष्मी ना जाए, लक्ष्मी वहीं रहे। बाकी और कोई जानवर का stool is never used, only cow stool is used because cow dung is used. The reason is that is having Lakshmi. तो इसके लिए बोला कि लक्ष्मी, तुझे मालूम है वो लक्ष्मी लेके जा रहा है, वो गोपी तेरे पड़ोस की गोपी है ना, घर की लक्ष्मी लेके जाएगी, मैं हिसाब करता हूँ, तू बाजू में हट। एंड उसने बोला गोबर का कीमत क्या देगी? लक्ष्मी हमारे घर की, क्या कीमत दोगे? गोपी ने बोला ठीक है, जितना गमेला में लेके जाऊंगी उतने का मैं मक्खन का गोला दूंगी तुझे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फिलॉसफी वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। भगवान बोले मुझे हिसाब नहीं आता है, एंड इट्स अ फैक्ट, भगवान को हिसाब नहीं आता है। लॉर्ड डजंट नो एनी हिसाब। क्यों? कभी कॉलेज स्कूल गए ही नहीं, पाठशाला गए ही नहीं, ऐसे गायों को चराने वाला क्या हिसाब किताब? इसीलिए भगवान के पास एक ही हिसाब, पूरा दो पूरा लो, पूरा दो और पूरा लो। ये हम लोग क्या करते हैं? हाँ, आप हमारे, हम आपके, हम आपके, इसके उसके, मेरे बीवी के, मेरे पति के, मेरे बच्चे के, मेरे घर के, मेरे रिश्तेदारों के, सबके हैं, बट कभी पूरे नहीं देते हम अपने आप। तो लॉर्ड बोलते मेरे को हिसाब ही नहीं आता। आई हैव नेवर गॉन टू स्कूल, आई हैव नेवर गॉन टू कॉलेज, सो व्हाट डज गॉड वांट? और हम लोग फुल देते नहीं। यहाँ गोपी को बोला मेरे को वो सब हिसाब तो पता नहीं, तो एक एक गमला लेके जाएगा ना, एक एक टिक्का लगेगा, ठीक है, टिक्का लगा देगी, एक गमला लेके जाएगी, एक टिक्का लगा देगी, गोबर का टिक्का, तो और एक गोबर का टिक्का, और एक गोबर का टिक्का, और गोबर का, करते करते बोले पूरा चेहरा भर गया। एंड देन लास्ट जब गमला लेके जा रही थी, वो गोपी भी जरा स्मार्ट थी, हल्का से ना गमले को थोड़ा सरका दी, पूरा गोबर उसके चेहरे, कृष्ण भगवान के चेहरे पे, और कृष्ण को बोला अब मैया देख मेरा पूरा चेहरे पे गोबर हो गया, अरे दौड़ दे, आज मैं धोती हूँ, हाँ धो दे, और याद रखना वो टीके नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो मेरा हिसाब किताब हो जाएगा, मुझे हिसाब किताब आता नहीं। वहाँ मैया बोली मेरे को क्या मालूम तेरा चेहरे में टीका थोड़ी अलग दिखने वाला, सब एक दिखने वाला, आजा धोती हूँ तुझे। नहीं, तुझे फंसा दिया, मुझे फंसा दिया इस गोपी ने, अब छोड़ूंगा नहीं, अब इसके घर में जाके माखन। This is how Krishna starts. This is all Lord's transcendental love. He never is interested in, everything what Lord does has something great behind it. The purpose is great. The understanding is great. Another time I'll tell you how Srinathji went to राजस्थान, मेवाड़ कैसे गए फ्रॉम गोवर्धन से कभी भगवान कभी कृष्ण छोड़ के जा सकते हैं क्या? गोवर्धन से यू कैन ब्रिंग अ स्टोन आल्सो, यू कैन नॉट गेट वन स्टोन फ्रॉम गोवर्धन आल्सो। क्यों? गोवर्धन इज आल्सो कृष्णा, एंड कृष्णा कभी वृंदावन छोड़ के जाते हैं। यू कैन नॉट टेक वन स्टोन आल्सो एंड गेट होम। मतलब मालूम पड़ा सब लोग एक एक लेके आए, 2 दिन में गोवर्धन से नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण को वहां से हटाने का पाप लगेगा, यू कैन नेवर टच। So it is said every act of God can be interpreted by only sadhus and shastra. साधु, आचार्य, शास्त्री ये इंटरप्रेट कर सकते। Why is श्रीनाथ जी, सब लोग श्रीनाथ जी देखे 99% सब लोगों ने देखा होगा, उनकी नजर कैसे? नीचे की तरफ झुकी हुई, हाँ नजर नीचे की तरफ है ना। क्यों नीचे की? बाकी सब हमारे राधा को देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर पकड़ के रखा और सब जो नीचे है तो सब डिवोटीज को देख रहे हैं। अग्रीड। और जब तक राधा रानी नहीं आएगी तब तक नहीं देखेंगे। राधा रानी तो नीचे अंदर ही थी ना, गोवर्धन के नीचे थी, गोवर्धन के नीचे थी। कहते हैं
आचार्यगण कहते हैं भक्त हमेशा मेरे चरणों पर रहते हैं, इसके लिए मैं उनको देखता हूँ। मुझे आगे देखने की शौक नहीं है, भक्त मेरे चरणों पे रहते हैं, इसके लिए मैं हमेशा नीचे देखता हूँ। बड़ा एक ब्रज का भाव है। वेरी फ्यू पीपल, आई मीन ओनली ब्रजवासी कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर मैंने ऐसा सीधा देखा और ब्रज का कोई व्यक्ति दिख गया ना मुझे, आई विल क्राई। I cannot bear my separation. I'll remember my separation because he has left Vrindavan in the form of Shinaji and gone with a heavy heart. बड़े वो भी ऐसे फंस के गए। You want to listen? Time होगा चलेगा? 10 minutes. एक बार अजब कुमारी बोल के एक राजस्थान की मेवाड़ की रानी थी, राजकुमारी थी, तो उसने बोला एक बार चलो मैं भ्रमण करने जाती हूँ। तो भ्रमण करने गई और गई वो वृंदावन में जाके वैन भगवान ऊपर बैठते थे, गोवर्धन के ऊपर, श्रीनाथ जी ऊपर थे, तो वहाँ पे जाके रोज देख के आया, दर्शन आके इतना खुश हो गई। वापस घर आई, घर में आके बीमार पड़ गई। When she came back to वृंदावन बीमार पड़ गई। अगर कोई धाम जाता है ना, हम लोग सब धाम जाते हैं 4 दिन के लिए, वहाँ जाके क्या ढूंढते हैं, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, पिज्जा कहाँ मिलेगा, मोमोज कहाँ मिलेगा, बट लीस्ट वी रियलाइज दैट ऑन द डे ऑफ रिटर्निंग यू आर शोइंग योर बैक टू द धाम। धाम में जाओ तो ऐसा कि वापस नहीं। दिस इज द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ धाम। गोइंग टू धाम दैट इज एक्चुअली गोइंग टू धाम। बट हम लोग ठीक है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बोल रहे हैं ना कि बॉम्बे में क्या करें, बॉम्बे में बीवी बच्चा घर सब है, तो उसके लिए आना पड़ता। तो वहां गए थे, तो वापस आई तो बीमार हो गई, बुखार चढ़ने लगा। बोला क्या करें, कैसे इसको लेके जाएं, हाउ टू टेक कर, मतलब ठीक कर कैसे करें। सब राजा ने सब डॉक्टर अरेंज किया, कुछ हुआ नहीं। एंड में उसने बोला मेरा बीमार ऐसा नहीं जाएगा, मैं अगर वापस वृंदावन जाऊंगी तो मेरा बीमार ठीक होगा। ठीक, वापस गए गोवर्धन के पास, अपना श्रीनाथ जी के पास गए, और वहां जाके रोज सुबह शाम पूरा दिन मंगला आरती से लेके शयन आरती तक वहीं रहती थी, दर्शन करती थी, और धीरे धीरे बहुत जल्द ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसका मन में हुआ मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। जब तक भक्त के मन में सेवा करने का भाव नहीं आता ना, वेस्ट, वो भक्ति नहीं। भक्त मीन्स who has really developed an attraction or love towards God, means then only he can express it through सेवा। सेवा करने का अगर भाव नहीं आवे ना, तो he is not expressing his love or he is not having his love। तो बोले मुझे अपना कुछ सेवा करना है। तो अंदर के गोसाई बोले देखो सेवा के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। क्या है, यहाँ पे आदमी लोग ही सुबह से लेके शाम तक सेवा करते हैं, खाना भी आदमी लोग ही बनाते हैं, जेंट्स ही बनाते हैं, तो आई एम सॉरी, आपको नो चांस। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से काम करो, भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करो, गाना गाओ, श्लोक बोलो, आपको जो जमे वो सेवा करो, हम रोक नहीं रहे। बट यहाँ पे ऑलरेडी सेवा सब लगी हुई है, आपको सेवा नहीं दे सकते। इंटेलिजेंट भक्ता वही होता है जो अपना सेवा निकाल ले। और मैं काफी लोगों को देखता हूं जो अपना इंटेलिजेंस यूज करके सेवा से भाग जाते हैं। हाँ, आजकल हमारे यहाँ इंटेलिजेंस बहुत आगे, एक लेवल आगे, बोलते क्या तरकीब लगाऊं और मैं सेवा से। और हनुमान जी, जब हनुमान जी का सेवा ले लिया था, सीता मैया ने बोल दिया हमेशा 24 आवर्स चिपका रहते हैं, वो दूर कर दो, लिस्ट लगा दी, सबका सेवा, ये इसका सेवा। और हनुमान जी का नाम ही नहीं था लिस्ट में। और हनुमान जी को यही जवाब दिया। हनुमान जी जगह बोले मेरे को वो सेवा तो दो, मेरा सेवा क्यों निकाल दिया आपने। ये सब सेवा लिस्ट हम लोगों ने बना दिया, फाइनल है, इसके ऊपर अगर आपको कुछ सेवा बच गया हो तो आप ले लेना। बड़े प्रेम से बोला। हनुमान जी क्या थे, ही कुड हैव हियर 2 ऑप्शंस। कुछ अकलमंदों की तरह बोल सकते अपना नाम ही नहीं है, ठीक है अभी नहीं है तो नहीं है, अभी जाके मैं भजन करता हूँ। उसने ये नहीं बोला, उसने क्या बोला, ढूंढना पड़ेगा, सब सेवा गए, अब मेरे लिए क्या सेवा बचे। चलो बड़ा 24 घंटा भगवान के पीछे खड़े,
बोले तेरा सेवा तो नहीं, तू जा यहाँ से। नहीं, मैंने एक नया सेवा लिया है। अगर भगवान को, अगर रामचंद्र जी को यॉर्निंग हुआ, तो मैं चुटकी बजाऊंगा। भगवान को यॉर्निंग हुआ तो मैं चुटकी बजाऊंगा। और यौन कब आ सकते हैं, बोल सकते हो क्या? सीता मैया बोली रात को भी बाजू में खड़ा है। तो दिन में खड़ा रहता था, अब रात में ही बाजू में खड़ा है। वो क्या उबासा, क्या वगासा, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? उबासी लेंगे तो मैं चुटकी बजा, भगवान के बाजू में बैठा है, जैसे चेहरे से मुंह आंख नहीं हटा रहे। भगवान जैसे 24 घंटा जैसे यौन करते रहते। तो अगला दिन से सीता मैया बोले वापस तेरे पुराने सेवे में आ जा। ये पहला वाला सेवा अच्छा था, कम से कम रात को तू जाता था, ये तो रात को भी खड़ा है बच्चे। सो द पॉइंट इज व्हेन देयर इज नो सेवा, one should search for a seva. Here also she was attracted in serving the Lord. She was very clear how she wants to serve the Lord in some way or the other. And अगर आप इच्छा से सोचोगे ना, सेवा निकलेगी। उसने सोचा मैं क्या सेवा करूं? बोली मैं तो राजकुमारी हूं, मैं तो अच्छा चौसर खेलती हूँ, गेम ऑफ डाइस, क्रॉस में रहता है ना गेम ऑफ डाइस, तो आई प्ले दैट। तो क्यों ना मैं भगवान के साथ चौसर खेलूं? एंड शी वाज एक्सपर्ट इन दैट, गुड इन दैट। अगला दिन सुबह भगवान के सामने लगा दिया चौसर का, लगा ये गेम लगा के, तो पहला अपना दांव खेला, फिर बोले भगवान आपका दांव मैं खेल रही हूं उनके लिए। एंड एवरी डे वो जीतने की कगार में रहती और भगवान हारने की, बिकॉज शी वॉज एक्सपर्ट इन प्लेइंग। भगवान को कभी कभी तो दोपहर को टेंशन आ जाता, उनको टेंशन आ जाता, अरे मैं तो अभी हारने वाला हूं। श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी को टेंशन है, अब मैं चौसर हारने वाला हूं, अब क्या करूं? ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा गर्दन आगे करके देखते थे, और फिर एंड में जाके लास्ट मिनट में पास से ऐसे गिराती थी कि वो हार जाती और भगवान जीत जाते। और भगवान इतने खुश हो जाते, कभी कभी अपने दो दांत दिखा देते। लिटरली इट्स सेड बाय आचार्य कि भगवान अपने दांत तक दिखा देते। तो ऐसा चलता था रोज। शी यूज्ड टू प्ले एंड श्रीनाथ जी यूज्ड टू एंजॉय। एक दिन ऐसा हुआ गेम में चांस ही नहीं था भगवान का जीतने का, लाइक नो इट वाज लाइक टोटली नो वे टू विन। और उस दिन लास्ट वापस उसने ऐसा डाइस फेंका कि she lost। और उस दिन तो भगवान was like literally was sweating, I'm going to lose, I'm going to lose, मैं क्या करूं अभी? And she lost and he won। भगवान इतने खुश हो गए, सामने प्रकट हो, सामने आ गए, and literally he embraced that Ajab Kumari and said, oh wow, you have done a great dice, you have given me such a nice pleasure, such a nice happiness। आपने इतनी खुशी दी है मुझे कि मुझे आनंद आ गया। तो अजब कुमारी भी बहुत आनंदित हो गए। और क्या मिल सकता है ना, एम्ब्रेस फ्रॉम लॉर्ड इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग शी कुड एवर गेट। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या चाहिए बोलो, आज मैं बहुत खुश हूं, तूने मुझे जिता दिया, क्या चाहिए बोलो। उसने बोला मैं कुछ नहीं, आप मेवाड़ चलो। मेवाड़ चलो, मैं आई कांट लीव वृंदावन एंड गोने, नहीं आप मेवाड़ चलो, आपको हमने वादा किया चलना ही पड़ेगा। तो ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, मुगलों को एक कारण बनाया। He used Mughals as an instrument. Why so many deities not go to Mewar? Only selected few deities only went. अगर मुगल तोड़ते थे बाकी नहीं तोड़ते थे क्या? सिर्फ ये चार को ही तोड़ के जाते। उनको थोड़ी मालूम है कि ये राधा गोपीनाथ है, ये राधा मदन मोहन है, यही तोड़ते क्या? Yet he made that instrument. He made Mughals as an instrument to go from Vrindavan to and वहां जाके वो खेलते। So one has to understand, Lord is the most reciprocal person in this world, and Lord is the most lonely person in this world. अगर दुनिया में कोई अकेला व्यक्ति है ना, हम लोग ना many times you all may say I'm so lonely है, और nobody, बॉयफ्रेंड भी नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, so many reasons to be lonely. But just imagine, at least you have got a parent. Technically speaking, we all are parents. But Lord doesn't have any parents also.
नो रिलेटिव्स। एंड जो भी सो कॉल्ड हम उनके अंश हैं, कितने लोग उनके बारे में सोचते हैं? एंड व्हेन डज दिस थॉट कम्स दैट यू आर अलोन? आपको मन में कब आता है ये ख्याल कि हम अकेले हैं? जो आपके अपने, जो जिनको हम अपने मानते हैं, वो आपको देखते नहीं। फिर बच्चा माँ बाप को देखे बगैर जाता है, you know, कोई कुछ doesn't throw away his thought process and just goes away। कैसा लगे? माँ बाप को लगे अरे ना, मैंने बच्चे के लिए दिया, बच्चा अभी मैं अकेली हूँ, मेरे कोई नहीं है, मेरा पति था वो भी गया, बच्चा था वो भी मेरे को ख्याल नहीं रखा। सो दीज आर द वेज इन विच वी से दैट वी आर अलोन। तो उस हिसाब से भगवान कितना अलोन है? हम लोग कितनी बार भगवान को सेवा करते हैं? एक बार बोल दिया ना किसी को, ऑफर करना है तो मुझे ऑफर करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा, भगवान को भोग तो लगाना पड़ेगा। सो इफ यू से यू आर अलोन, you are a fool. The most lonely person in this world is, and that is why उनका एक ही I don't know, अडानी एक क्या वो एक कोट हुआ करता था, बोरेली में कोट हुआ करता था, नेम अच्छा नाम था, हाँ नहीं आई डोंट नो, वहां पे कैसे है, यू एक्सेप्ट योर सिंग अपना गलती एक्सेप्ट किया, अंधा कोट ना, अंधा कोट किया, हाँ अंधा, अच्छा अंडा कोट, आई डोंट नो व्हाट, आई फॉरगॉट नेम, आई डोंट नो, आई हर्ड अबाउट इट, दैट 10,000, हाँ 10,000 रुपया, हाँ मैंने नहीं, मेरा 10,000 मेरी गलती नहीं, 15,000 20,000, मतलब till you don't accept वो बढ़ते जाएगा। So it is like that. We are always, in that foolish mode of trying to refute God, or not ready to accept God, and that is the problem with us. The problem with us is we don't want to accept that relation, because relation, when you accept, we have to serve. You have to follow certain rules and regulations. जो हम लोग पहले initially, this I have seen this. भक्ति है ना, कई जगहों पे मैं देखा, कई लोगों के अंदर देखा है, एक सोडा बोतल की तरह है। When you open the soda bottle ना, करके बाहर निकले, अंदर नहीं nothing, that's it. भक्ति भी कई लोग ऐसा करते हैं। That's not devotion. That's infatuation. Girls have a crush on the boy has a crush on the girl. That's all infatuation, and after a few days, that infatuation just vanishes. Similarly, ये जो भक्ति है ना, ये इस तरह से भक्ति नहीं होनी चाहिए। I still remember when I started my devotion, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी, वेरी फर्स्ट एकादशी, मतलब उसको जस्ट बोला गया था एकादशी, सेकंड एकादशी, निर्जला, उसके नीचे बात ही नहीं, मैं खा भी क्या करता था। निर्जला फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, वेरी गुड, एंड लाइक fasting every day, and like following all the rules, very first day। मैं से क्या बहुत महान भक्त है, मैं किधर रह गया, किधर पहुंचेगी, मतलब लगा एक आध हफ्ते में विमान आके लेके जाएगा। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वैकुंठ से मैं विमान आके उसको लेके जाएगा। मैं मेरा वाइफ लाइक वी वर वॉकिंग बेबी स्टेप्स, बट वी वर वॉकिंग, इट्स नॉट दैट वी वर ट्राइंग टू आर्टिफिशियली डू समथिंग, वी आर ट्राइंग टू डू इट naturally। And for 1.5 years, my God, you should have seen everything छोड़ के एकदम like literally sincerely doing it. And one fine day, one fizz came out, all that fizz was out, and that's it, bye bye, everything back to normal. तो मेरे को लगा I am elated। So no doubt she went into back to the कर्मी वर्ल्ड, एंड आई एम बैक इन माय स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट कहने का भाव अर्थ क्या है कि भक्ति एक फिज की तरह नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बोला तो पानी भी गिरता है और तेल भी गिरता है, यू पोर ऑयल एंड यू पोर वाटर, पानी कैसे गिर रहा है, धड़ 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 धड़, देयर इज नो प्रॉपर कंसिस्टेंसी इन द फ्लो, बट यू सी ऑयल एक तार की तरह गिरेगा, इट विल फॉल इन। भक्ति वैसे होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक कंटिन्यूस फ्लो, इट शुड नॉट बी चेंजिंग। वेरस हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है।
लेट्स गो टू वन नेक्स्ट वर्स. नहीं तो हमारा भीष्म स्तुति will take one more year to complete for us. विजयरथे कुतुम्ब आततोत्रे दुर्दहय रश्मिन् तत् चिकीर्षणीय भगवती रति अस्तु मे ममूर्षुः यम इह निरीक्षयेत् गत स्वरूपम्. He says, at the moment of death, let my ultimate attraction be to Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in the right hand and a bridle rope, that is the lagam on the left, who was very cheerful and who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him in the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. So that is what many people ask me, क्या है कृष्ण ने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया? अरे युद्ध क्या, करोड़ों लोगों को मुक्त कर दिया. He gave moksha, to salvation. So again, what is Bhishma Pitama trying to say? I want to remember that face. मुझे वो चेहरा याद कर रखना है जो भगवान, हम लोग भगवान का किस चेहरे को याद करना चाहते हैं. डिसाइड किया जो जिसका भाव है, इसके जो भाव है, बट अभी तक हम लोग ने डिसाइड नहीं किया. टाइम क्या है सबके पास? टाइम. चैंटिंग भी वैसे करते हैं ना, टाइम है. हमें तो प्रभु जी जवान लंबा जाना है. अरे कल सुबह, कल का पता नहीं, इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात कर रहे हो? इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात कर रहे हो? So this is what he is saying. At the moment of that, let that ultimate attraction be to. So this is what is a prayer. स्तुति, prayer. स्तुति का और एक अर्थ क्या है? स्तुति का pray, okay, glorify करना. एक्सप्लेन किया आप लोगों को. सब हाईली वॉलेटाइल मैटर है, फटक से इवेपोरेट हो जाती है. फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. अच्छा ठीक. What is the difference between material glorification and spiritual glorification? दोनों में अंतर है. Spiritual glorification is the truth and material glorification is अपने को वो. It is on the spiritual. You all are close. He is very close, but the answer is not correct. Temporary and permanent. No. याद रखना, जब हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में जो भी बोलो वो करेक्ट ही होगा. यू ग्लोरीफाई गॉड, या सत्य वाक्य हो, सत्य वाक्य, उनका वाक्य हमेशा सत्य होता है, कभी गलत नहीं होगा. Even in this case also you could see he was Satyavakya. Then he is always Satya Parakrama. What is the word Satya Parakrama means? Satya Parakrama का मतलब क्या है? True warrior, brave, or always a winner. Always a winner. Always a winner. Always a winner कैसा? अगर मैं किसी वॉरियर को बोल दूं आप सत्य पराक्रमा हो, वो गलत हो जाता है. He lose by death. नहीं. At any moment of time, he may have won many matches, many wars he may have won, but there must have been few wars which he has lost. Even if he has not lost, he will lose at the time of death. Whereas for the Lord, there is no birth, there is no death. So Lord is the actual hero, the actual warrior, actual fighter. So whatever we call a chore, he is a chore. उसके से बड़ा चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि चोर ही है जो आपके पाप को हर सकता है. हरण करने हम लोग हरि क्यों बोलते हैं? मेरे पाप को हर लो, मेरे पाप को हर लो. मतलब जस्ट इमेजिन कोई चोर के भी, ए चोर मेरा पैसा लेके जा, ए चोर मेरा पैसा लेके जा, कोई बोलेगा? मगर आप क्या बोलते हो भगवान को? भगवान मेरे पाप निकाल लो, मेरे पाप निकाल लो, मेरे पाप को हर लो. तो भगवान कैसे हर सकते हैं? जब तक वो चोर नहीं बनेंगे वो कैसे हारेंगे? So whatever you speak about Lord is 100% correct, and whatever you speak about
द मटेरियल पर्सन, भौतिक दुनिया में किसी व्यक्ति के बारे में आप बात करते हो तो समझ लेना उस व्यक्ति को अगर कुछ गुण है, उसके अंदर कुछ पराक्रम है या कुछ क्वालिटीज हैं, तो वो कारण भगवान की वजह से। अगर कोई बोले हाँ प्रभु जी आप बहुत अच्छा बोलते, क्या बोलता हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ शास्त्र में लिखा है बोल रहा हूँ, जो आचार्य ने बोला वो बोल रहा हूँ। ये तिलक को अगर कीमत है तो वो भगवान की वजह से है। सो इन व्हाट वे एम आई जस्टिफाइड टू टेक एनी प्रेज और ग्लोरीज? हु इज जस्टिफाइड टू टेक द ग्लोरीज? ओनली द लॉर्ड। I am not only me, anyone. No one is entitled or is justifying by taking the glories. The glories should only go to God. And if at all you are getting a glory, it is because you are the servant of this God. Since you are the servant of God, you will get the glories. Otherwise, you will not get it. So that is why he is saying, always I am concentrating my mind on this charioteer who is having the whip in his right hand and the bridle rope on the left. And who is carefully giving protection to Arjuna. Hamesha he is interested in giving protection. Only to Arjuna? To his all his devotees. अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। मगर हम लोग क्या है? We are always ready to, and the biggest problem with us is following 4 regulative principles is the biggest problem for us. अगर मैं बोलूँ ना, अरे प्रभु जी दारू मत पियो, जी वो दारू क्या, किडनी मांग लो, दारू मत मांगो, किडनी ले लो मगर दारू मत छुड़ाओ, नॉनवेज मत खाना, अन्न नहीं, अब खाया नहीं इसके लिए आपको मालूम। That's the first explanation they gave me. One person has given me. आपने खाया नहीं इसके लिए मालूम। And last but not the least, the best was, अगर मैं किसी को बोलूं जुआ मत खेलना, वो खेले। Why are people interested in indulging in gambling? Quote unquote, people have lost money. Daily in the news you will see a person lost in Facebook 5 crores, 50 lakhs, 25 lakhs, 10 lakhs. Why? लालच बुरी बला है, आज नहीं, पीढ़ियों से कहा जा रहा है लालच छोड़ दो, बट लालच से ही मर रहा है ना। शेयर मार्केट में जाएंगे, पैसा डालेंगे, वो भी किसी को टिप देगा। अरे आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, अगर किसी व्यक्ति के पास जादुई चिराग है, फिर भी जाते हैं ना, इतना सब जानते हुए भी, that is what is you are under Maya, because your devotion is not strong, your faith on Krishna is not strong. The day you develop full faith on Krishna, the day you develop full dependence on Krishna, then you don't have to go into this speculative earning, in breaking the 4 regulative principles, be it illicit sex, gambling, meditating, anything. These 4, it is said total there are Pancha Mahapapa. What is the 5th one? You know that? आपने बताया था प्रभु जी, आपके गुरु की वाइफ को नहीं, पंचपाप वो नहीं, वो अलग है, that comes under different category. Ungrateful, being ungrateful, don't meet this kind. Funding this 3, 4. Funding this 4 is giving money for this 4 is the 5th. Most dangerous is giving money for drinking, for smoking, because भले वो ठीक है, उसको पैसा मत दो, वो अपने जो भी करेगा वो अपने कर्म कमाएगा, वो अपने कर्म से वो he will suffer, but why should you give? अब यहाँ ये इस क्वेश्चन में ही आएगा, बाकी जनरल क्वेश्चन पूछो तो नहीं आएगा। If like people invest in ITC and all because it's related to tobacco, so that company Investing itself is bad, no? किसमें इन्वेस्ट करना है वो थोड़ी बात अलग है। That is the question of investing, because the question is speculative earning. See, when it comes to speculative earning, it is dangerous. It is dangerous. I am not saying it is sin. And शास्त्र कहता है कि भाई आपको मेहनत करके कमाओ ना, लगाओ 4 फैक्ट्री लगा के कमाओ, कौन मना कर रहा है? When you put up a factory, you are feeding thousands of people. You know that.
you're feeding your workers, you're buying something. वो आदमी, let's say, you buy packaging material. I was on DICE. We used to have the 25 kg drums. तो 25 kg ड्रम सप्लाई करने वाला वहां पे उसको बस कम से कम 200 वर्कर्स. So 2 many people are earning. भले मैं एक ड्रम ले रहा हूँ, मतलब मैं 50 ड्रम या 100 ड्रम ले रहा हूँ, बट वो ड्रम, वो प्लास्टिक, अच्छा उसने जो बना रहा है वो कहाँ से प्लास्टिक सीड वीड ले रहा है, तो रॉ मटेरियल ग्रेन्यूल्स ले रहा है, वो भी कमा रहा है. इट्स अ चेन. एवरीवन इज अर्निंग. यू बाय वन, कुछ बिस्किट का पैकेट लो, उसमें भी कुछ वो प्लास्टिक बैग जो 1 पैसा 5 पैसा का जो भी प्लास्टिक बैग है, उस पे कई लोगों का घर चल रहा है. सो अर्निंग मनी इज नॉट बैड, बट speculative, they think that I'll do it this way, I'll do it this way, and then होने के बाद when things are going nice ना, प्रभु जी को क्या मालूम, प्रभु जी को क्या मालूम है, when things are going great guns, but the day it topples ना, प्रभु जी नसीब खराब है. अरे काय का नसीब खराब है, आप बैल मुझे तू मार. You are invited trouble and then you yourself are suffer. So that is why it is said Krishna gives protection in all ways, and always in the sense, first and foremost, to attain the protection you have to pay a premium. To be under an LIC, to be under a mediclaim, you have to pay a premium. तभी आपको पॉलिसी मिलता है. तो यहाँ पे प्रीमियम क्या भरना है आपको भगवान की भक्ति के लिए? Only following 4 regulative principles. This is the premium you have to pay. भक्ति नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर कम से कम 4 नियमों का पालन तो करो, कि ये 4 नियमों का पालन करने से आदमी मनुष्य बनता है, और भगवान मनुष्यों के लिए है, प्राणियों के लिए. भगवान को क्या मालूम, प्राणी को क्या पता है ये भगवान है ये शैतान है, क्या पता. It's as good as zero. So it's better that one follows devotion service, but before following devotion service, one has to cleanse himself and purify himself by first and foremost following the 4 regulative principles and then surrendering to God. These are the 2 things we have to understand. Okay, with this I'd like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.